آج کل میسکولینٹی کی بہت بات ہوتی ہے، مردانگی کی، اصل مرد کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے دو ایٹریبیوٹس، نمبر 1 کبھی اسٹرانگ ہے، جسمانی طور پہ اسٹرانگ ہے، اور نمبر 2 امین ہے۔ امین امانت کو پوری کرنا، ٹرسٹ وردی ہے۔ یہ بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے۔ مرد کو ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے، مرد کو رسپانسبل ہونا چاہیے، مرد ایسا ہونا چاہیے کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے اور اس کو رسپانسبل ہونا چاہیے۔ تو یہ دو کوالٹیز بیان کی، تو شیخ الاسلام بہت خوش ہوئے اور شیخ الاسلام نے شکریہ بھی کیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ون آف مائی ڈاٹرز، میں چاہتا ہوں آپ ان سے نکاح کر لیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، لیکن ایک شرط رکھی شعیب علیہ السلام نے، جس سے کچھ علماء نے یہ پوائنٹ نکالا ہے گھر داماد کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی کہ آپ 8 سال اور اس سے ایکسٹرا 2 سال مجھے سرو کریں گے، آپ یہیں پر رہیں گے، اگر آپ کو یہ کنڈیشن منظور ہے تو انشاءاللہ لیٹس پروسیڈ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ایگریمنٹ کو قبول کیا۔ یعنی ایسا ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے نکاح کے وقت، میوچل ایگریمنٹ، میوچل آپس میں ڈسکشن کر کے، جس میں دونوں پارٹیز کا کوئی فائدہ ہو۔ بہرحال اس کے بعد واقعہ آگے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر نکلے، اور یہ کئی سال بعد کی پھر بات ہے، بچے بھی تھے ان کی وائف بھی تھی ساتھ۔ تو راستے میں وہ جا رہے تھے اپنے قوم کی طرف واپس، مصر واپس جا رہے تھے اپنے ظاہر ہے بہن بھائیوں سے ملنے، ان کو یاد ستا رہی تھی اپنی قوم کی۔ تو راستے میں ماؤنٹ طور سے جو ہے وہ انہیں آگ ایک دکھائی، وہاں پر وہ تشریف لے گئے، فیملی کو کہا کہ میں کچھ آگ کا انتظام کرنے جاتا ہوں۔ تو وہاں پر پھر ایک درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں اللہ ہوں اور میں نے آپ کو چوز کر لیا اپنے لیے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہے، میں نے آپ کو اپنے لیے چوز کر لیا، گو ٹو فرعون، فرعون کی طرف جائے، بے شک اس نے بڑا ظلم کیا، بے شک وہ حدیں پار کر کے آئے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی پوری ٹریننگ بھی یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، عصا دیا، عصا کو کہا زمین پر پھینکی، وہ ایک اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ تعالیٰ کا ڈرو نہیں پکڑ لو، بہت خوبصورت الفاظ ثابت ہوا۔ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ اللہ تعالیٰ ڈر ختم کر رہے ہیں کہ موسیٰ آپ مجھ پہ آپ اتنا ٹرسٹ کرو، اب آپ مجھے رب مان رہے ہو نا، تو مجھے آپ سے اتنا ٹرسٹ چاہیے کہ اپنے ڈر کو فیس کرو، اپنا کریج باہر لاؤ۔ ثابت ہوا کریج ایبسنس آف فیئر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کریج کو سمجھتے ہیں ایبسنس آف فیئر۔ کریج از ناٹ دی ایبسنس آف فیئر، کریج از دا ایبلٹی ٹو فیس فیئر۔ کریج اپنے فیئر کو فیس کرنے کا نام ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ اژدہا فیس کروایا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے فیئرز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ اگر آپ بھاگتے رہیں گے اپنے فیئر سے، بھاگتے رہیں گے، شاید وہ یا معاملہ ہو جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، بلی آنے کو ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بلی نہیں آئے گی، لیکن بعد میں حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ٹرسٹ اللہ۔ اگر کوئی مشکل آئی ہے، باوجود اس کے یو ٹرائیڈ یور بیسٹ، دیکھیں آپ نے ایک بیسٹ ڈیسیجن لیا، اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کی، اس کے باوجود کوئی مشکل آ گئی ہے، تو اب آنکھیں نہ بند کریں، فیس دیٹ مشکل، اس فیئر کو فیس کریں۔ اور کس لیے فیس کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اکیلا چھوڑ دیا تھا فرعون کے پاس بھیجنے؟ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک یونیورسٹی ہے، اس کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئے، کہا کہ ہم نے اسلامک سوسائٹی بنانی ہے اپنی یونیورسٹی میں، لیکن ہمارا جو ڈی ایس اے ڈین اسٹوڈنٹ افیئر اور جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا جلاد ہے اور اسلام پسند نہیں ہے بالکل بھی، تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے ہم ان کے سامنے بات کریں گے، پروپوزل ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو سبحان اللہ، میں نے قصہ انہیں ریوائز کرایا کہ یار کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیج رہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ جا کر بات کرو، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ پڑھ کر جائیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جا کے پروپوزل پریزنٹ کریں، کانفیڈنس سے پریزنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھیج رہا، آپ کا ڈی ایس سے فرعون تو نہیں ہے نا، مسلمان ہی ہے، چلو ٹھیک ہے، اسلام پسند نہیں ہوگا، ہے تو مسلمان۔ الحمدللہ وہ گئے، اپروو ہو گیا معاملہ، یہ دعا پڑھ کر گئے، اچھی طرح سے پریزنٹ کیا، حکمت کے ساتھ پریزنٹ کیا پروپوزل۔
तो मूसा इस्लाम की लीडरशिप ट्रेनिंग अल्लाह ने की कि मूसा फर्स्ट यू नीड टू फेस योर फियर्स। आप एक काम करने जा रहे हैं, देखें अगर आपने सही मर्द बनना है ना तो फियर को फेस करना सीखें। अल्लाह ताला की मदद आएगी, ज़रूर आएगी। जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, अपनी मुश्किलात से भागना नहीं चाहिए। रेजिलियंट लोगों की एक निशानी क्या है? रेजिलियंस एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पढ़िएगा। रेजिलियंस, अज़म कहते हैं, उलुल अज़्म अल्लाह ने तारीफ की है अज़म वालों की। अज़म एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, रेजिलियंस। इसको कभी आप एआई के थ्रू पढ़िएगा, व्हाट इज रेजिलियंस। रेजिलियंट लोगों की एक निशानी ये है कि वो मुश्किल से भागते नहीं हैं, वो मुश्किल को फेस करते हैं। मुश्किल है, आई नो, कहना आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, बट वो फेस करके उसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं, अल्लाह से मदद तलब करते हैं, मुख्तलिफ सोल्यूशन ट्राई करते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है, कोई ना कोई सोल्यूशन उन्हें नजर आ जाता है। और जो नॉन रेजिलियंट लोग होते हैं मुश्किल से भाग जाते हैं। हाँ, कभी कभी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम भाग गए थे, वो तो मुश्किल ही ऐसी थी ना, वो तो फियर ही ऐसा था, वो एक अलग बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि फेस योर फियर, और उसके बाद ये तसल्ली दी कि मूसा जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, कोई बात नहीं, तुम दो हो, जाओ जाकर उससे बात करो, और नरमी से बात करना, क्या पता मान ले। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। फिरौन के बारे में अल्लाह कह रहा है नरमी से बात करना, हालांकि अल्लाह को कंफर्म पता है वो बात नहीं मानेगा। साबित हुआ डिफिकल्ट लोगों के साथ नरमी इख्तियार करनी चाहिए। अगर आप डिफिकल्ट लोगों से डिफिकल्ट होंगे तो वो डबल डिफिकल्ट होंगे। अगर आप डिफिकल्ट लोगों से बहस करेंगे वो 10 टाइम और बहस करेंगे आपसे। मूसा अलैहिस्सलाम फिर फिरौन के पास गए और ये दुआ पढ़ कर गए, रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। ऐ अल्लाह, मेरी ज़बान की गिरा खोल दीजिए, ऐ अल्लाह मेरा काम आसान फरमा दीजिए, मुझे शरह सदर दे दीजिए, मुझे क्लैरिटी दे दीजिए। क्या क्या मांगा? क्लैरिटी, ज़बान की गिरा खोलना, और तीसरी चीज़ मेरा काम आसान कर दे। चौथी चीज़ वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, ऐ अल्लाह मुझे एक वज़ीर दे दे, एक साथी दे दे, हारून अख़ी। ये भी कह दिया हारून दे दे, बिल्कुल नहीं शर्माए। अल्लाह से मांगते हुए शर्माना नहीं चाहिए, इतना स्पेसिफिक हो गए। और अल्लाह ऐसा जिक्र हमारी ज़ुबान पे जारी कर दे कि हम आपका जिक्र करते हुए वहाँ पे जाएं। अल्लाह ने दुआ कबूल की। और फिर स्टोरी आपको पता है, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर गए और किस तरह फिरौन की कमर तोड़ी उन्होंने, आर्मी से शिकस्त नहीं दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने प्रॉपर सियासत की है, ये है सियासत। डिबेट में शिकस्त दी, पीआर में शिकस्त दी, ठीक है, फिरौन की पीआर तोड़ी, फिरौन के लोगों के सामने उसे जलील किया, पब्लिक को अपनी तरफ किया। दिस इज सियासत, दिस इज पॉलिटिक्स। तो पूरे इस वाक़े में सियासत भी हमें नजर आती है, और मदद किसकी? अल्लाह की। और इतनी बड़ी उसकी शिकस्त हो गई कि उसके अपने जादूगर वो सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लेकर आओ। तो ये वाक़या सुभान अल्लाह कई सूरज में है, सूरह अल-अराफ में है, सूरह त्वाहा में है, सूरह स्वाद में है, सूरह कसस में। सूरह कसस में इसका एक और रुख है जो मैंने आपके सामने रखा। वो वाला फेज है मूसा अलैहिस्सलाम का, जब वो फ्यूजिटिव बन गए, बंदा कत्ल हो गया, भाग गए, एक क्रिमिनल बन गए, और क्या डर था, क्या खौफ था, क्या अनसर्टेनिटी थी। लेकिन फिर किस तरह अल्लाह ने उन्हें मिशन दिया, किस तरह अल्लाह ने उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग की, किस तरह उन्होंने अल्लाह ताला से वो चीज़ें मांगी जो हमें भी मांगनी चाहिए। देखें, अल्लाह से ज़िंदगी में ये चीज़ें मांगा करें, क्लैरिटी, रब्बी शुरह ली सदरी, अल्लाह मुझे क्लैरिटी दे दे ताकि मैं अच्छे डिसीजंस लूँ लाइफ में। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में सफ़र क्यों करते हैं? बुरे डिसीजंस लेकर। अल्लाह से मांगे, अल्लाह तू अर रशीद है। क्या है इसका मतलब? अल्लाह ताला रशीद है, यानी अल्लाह ताला रास्ता दिखाने वाला, क्लैरिटी देने वाला है। अल्लाह मेरा शरह सदर कर दे ताकि मैं ज़िंदगी में गलत फैसले ना करूँ, मैं सही फैसले करूँ, मुझे सही फैसले करने वाला बना, और इस्तिखारा भी कीजिए। तो अल्लाह से उन्होंने ये मांगा। फिर ज़बान की रवानगी मांगी। फिर आप देखें, पैसा नहीं मांगा, टीम मांगी, नेक साथी, नेक वज़ीर मांगा। सबसे बड़ी नेमत एक नेक साथी होता है, एक नेक टीम होती है। और ये बात दावा के काम में हमें एहसास हुआ। पैसा अल्लाह दे देता है, रिसोर्सेज अल्लाह दे देता है, असल में टीम मैटर करती है। असल में नेक लोग
जो आपका साथ देने के लिए तैयार है, वो सबसे बड़ा असासा है। तो अल्लाह से ऐसी औलाद भी मांगे कि अल्लाह मेरे मिशन को आगे ले जाने वाली औलाद, मेरी लेगेसी को आगे ले जाने वाली औलाद, ऐसी औलाद अता कर। अल्लाह ऐसा साथी अता कर जो मुझे समझे, मैं उसे समझूं, हम एक दूसरे का हाथ बटाएं। ये दुआएं अल्लाह से करनी चाहिए। तो ये मूसा इस्लाम का वाक़या है। एक और वाक़या इसमें आता है, वो भी आप सामने रखना चाहूँगा, फिर बात को ख़त्म करेंगे। कारून का तज़किरा भी है सूरा के एंड में। कारून कौन था? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था, बहुत अमीर था। अल्लाह ताला कहते हैं उसके खजानों की चाबियां जो है वो लोग उठा कर लाते थे, यानी इतना ज़्यादा उसके पास माल था और इतने खजानों, दरवाजे इतने बड़े होंगे वो जो चाबियां थी कि वो चाबियों को उठाकर लोग लाया करते थे। लेकिन उसमें एरोगेंस इस लेवल की आ गई। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला लोगों का भी रवैया बयान करते हैं यहाँ पे, और अल्लाह ताला उसका भी रवैया बयान करते हैं। लोगों का रवैया ये था, वो आया मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। लोग जब उसका खजाना देखते थे तो क्या कहते थे? अल्लाह ताला ने वो सेंटेंस लोगों का कोट किया है। अल्लाह कहते हैं कौल लजीना युरीदून अल हयात दुनिया, वो लोग जो बहुत दुनिया परस्त थे, जो बहुत मटीरियलिस्टिक थे, जो बहुत ज्यादा दुनिया को चाहते थे, उन्होंने क्या कहा? या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। उन्होंने क्या कहा कि ओह काश जो कारून को दिया गया है ये हमें भी दिया जाता, बेशक ये तो बहुत कामयाब इंसान है। अल्लाह, आज देखें हम ये गलती करते हैं। मैं नहीं कह रहा आज के ब्लॉगर्स कारून है, अल्लाह ताला, वो मुसलमान हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे ताकि वो अपनी हरकतें दुरुस्त करें। लेकिन आज हम किसी ब्लॉगर को जो फॉर्चूनर गाड़ी अपनी दिखाता है, दुनिया फ्लॉन्ट करता है, आज हम ये ख्वाहिश नहीं करते यार कितना सक्सेसफुल है, काश हमारे पास भी ये हो। ये तो वही सेंटेंस है जो लोग कारून को देखकर कहा करते थे। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? अगली आया क्या है कि जब लोगों ने उसे ज़मीन में धंसते देखा, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस तरह के अजाब से। जब लोगों ने उसे ज़मीन में हंसते देखा तो क्या कहा? हाय अच्छा हुआ कि हम इसकी तरह नहीं बने। ये सेंटेंस है उनका, अच्छा हुआ हम इसकी तरह नहीं बने। और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस तरह के अजाब से कि ज़मीन हमें स्वॉलो कर ले। यानी उन्होंने इबरत पकड़ी, वो समझ गए, अक्लमंद थे, दुनियादार थे लेकिन अक्लमंद थे, समझ गए। तो कारून का एक जुमला जो यहाँ पर स्पेशली अल्लाह ताला ने जिक्र किया वो मैं आप सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। कारून ने ये गलती की, उसने कहा कौला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये सब कुछ मेरा इल्म है, मेरा कमाल है। उसमें किबर था, तकब्बुर किया। उसे क्या कहा? मैं सेल्फ मेड हूँ, ये सब मेरा है, खुदा का कोई कमाल नहीं, दिस इज माई नॉलेज, मैं ये सब मैंने अपने इल्म से कमाया। कभी कभी हमसे भी अल्लाह माफ़ करे गलती हो जाती है कि हम कहते हैं हम भी सेल्फ मेड हैं। देखें आई अंडरस्टैंड हम ये किस नीयत से कहते हैं, किस उस बैकग्राउंड से, लेकिन नहीं कहना चाहिए। जुमलों का पर्सनैलिटी में बड़ा असर होता है। इससे पिछली सूरा में कमाल की बात यह, सूरा नमल में किसका तज़किरा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम का। इंटरेस्टिंगली उनका भी एक जुमला है, उन्होंने जब भी वो कोई नेमत देखते थे अल्लाह की, क्या कहते थे? हाजा मिन फजली रब्बी। आजकल ये घरों पे लिखा होता है ना, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का जुमला है। साबित हुआ दो रवैये हैं, एक तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस वाला रवैया है, एक सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस वाला रवैया है। तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस नबियों का था, नबी बहुत कॉन्फिडेंट थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर पे पहुंचे, बनी इसराइल बड़ी, आपको पता है, एक शरारती भी और बड़ी ढीठ कौम थी और बड़ी टफ टाइम देने वाली कौम थी। उन्होंने ताना दे दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, कहते अब क्या मूसा, अब तो समंदर आ गया, तू तो हमें मरवाने ले आया, तू तो अच्छा था वहीं रहते, ये ताना दिया, तू तो हमें मरवाने ले आया। अल्लाह अकबर। उस वक्त क्या कहा मूसा इस्लाम ने? कोई नहीं, मेरे पास असा है, फिक्र ना करो, कोई नहीं, मेरे पास मौइज़ा है। क्या कहा? बेशक मेरा रब मुझे गाइड करेगा। वही यहाँ पे लेकर आया तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस था, लेकिन अपने ऊपर नहीं, असा के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर। एक होता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, नाउज बिल्ला, वो कहते फिक्र ना करो मैं हूं ना, फिक्र ना करो, असा है, असा अभी मैं आगे करता हूँ, ठीक हो जाएगा सारा मामला। ये कॉन्फिडेंस जो है ये कुफार का है,
क्योंकि अल्लाह तो उनके पास है नहीं। इसीलिए यंगस्टर्स को मैं कहता हूँ बीवेयर, सेल्फ हेल्प बुक्स मार्केट में बहुत हैं, सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हैं वेस्टर्न, उनके ऐसे ऐसे टाइटल्स हैं, अनलीश द जायंट विद इन, अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल। मैं नहीं कहता कि ये बुरी बातें हैं, लेकिन बीवेयर, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। ऐसा ना हो कि हमारा रवैया ये बन जाए मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यकीन करें अगर ये हमारा रवैया बन जाए फिर हम गिरते भी उतना है, चोट भी उतनी लगती है। क्योंकि जो इंसान इतना शोखा हो जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसको जब नुकसान होता है वो फिर डिप्रेस भी उतना ही होता है। इसलिए हम्बल रहना चाहिए, इसलिए आजिज रहना चाहिए। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, मेरा रब मुझे फजल दे रहा है, बहुत दे रहा है, सब अल्लाह का कमाल है, अल्लाह चला रहा है। फिर आप देखें लाइन शकर तो लाज़ीदन्ना, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें इजाफा करता रहूँगा और देता रहूँगा। ये है कॉन्फिडेंस जो हमें होना चाहिए कि अल्लाह से होता है हर चीज़। तो कारून ने जो गलती की, उसने कहा ये मेरे इल्म का कमाल है, ये सब मेरा कमाल है, और फिर अल्लाह ताला को ये जुमला पसंद नहीं आया। तो कारून रिप्रेजेंट्स कैपिटलिज्म। बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे बात है, इस सूरा में 3 लोगों का जिक्र है, फिरौन, हामान, हामान का भी शुरू में जिक्र है, और तीसरा कारून। अगर आप गौर करें, फिरौन रिप्रेजेंट सेकुलरिज्म, सेकुलर वर्ल्ड व्यू, हामान रिप्रेजेंट्स द सेकुलर मीडिया। हामान आपको पता है कौन था? स्ट्रेटेजी मेकर था फिरौन का, मशवरे उसे हामान दिया करता था, उसकी प्रमोशन हामान करता था। हामान, आज का हामान जो है ये करंट मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, जो एथिज्म को प्रमोट करता है, फॉल्स वैल्यूज को, दज्जालियत को प्रमोट करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों के सामने जो है ना वो इस्लाम को डिग्रेड करते हैं और सेकुलर वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। तो बिवेयर ऑफ हामान, ये पूरा एक ट्राइंगल है, फिरौन, हामान और कारून। कारून क्या है? कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोच, दुनिया दुनिया दुनिया, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज प्रॉफिट लॉस में देखना, दैट इज कारून। तो अल्लाह ने तीनों का एंटीडोट इस सूरा में बता दिया, फिरौन का भी, हमान का भी, कारून का भी। बी लाइक मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा इस्लाम वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, लीडरशिप आपको ही मिलेगी। मूसा को ही मिली थी लीडरशिप। तो ये खूबसूरत लेसन हमें मिलते हैं। जस्ट टू वाइंड अप, 10 खूबसूरत लेसन मैं आपके सामने रखता हूँ, पावरफुल लेसन इस सूरत से। नंबर 1, अल्लाह का ही प्लान गालिब आएगा, जो मर्जी कोई और कुछ कर ले। तौहीद रिवाइज करें इस स्टोरी से अपनी। कुछ नहीं होगा आपके साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई गंदा मंदा जादूगर बंदिश नहीं कर सकता, कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह ने आपको कुछ देना है। दिस इज तौहीद। अल्लाह का प्लान ही गालिब आएगा। अगर मूसा इस्लाम को फिरौन के महल में अल्लाह ले जा सकता है, जहां पर इतना सख्त पहरा है, जो मारना चाह रहा था मूसा को, तो फिर आपकी जिंदगी में भी अल्लाह ताला कुछ भी करवा सकता है। पहला लेसन। दूसरा, कभी कभी तवक्कुल एक बहुत रिस्की काम लेना दरकार करता है आपसे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक बहुत ही अनबिलीवेबल काम किया। कभी कभी अल्लाह ये तवक्कुल आपसे मांग रहा होता है कि मुझ पे ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट करो। तीसरा, अल्लाह ताला दिलों को कंट्रोल करता है और कोई नहीं। देखें, फिरौन के दिल में मोहब्बत भर दी अल्लाह ने मूसा की, क्या साबित हुआ? अल्लाह दिलों को कंट्रोल कर। फिरौन जो मार रहा था लड़कों को, वो मूसा से मोहब्बत करने लगे, मूसा मोहब्बत करने लगा। मूसा इस्लाम ने उसकी दाढ़ी खींची थी, उसने कुछ नहीं कहा आगे से। वो वाक़या खैर आता है, कोयला मुंह में ले लिया मुझे, ऐसा दिल नरम किया फिरौन। तो अल्लाह आपके हवाले से भी किसी का दिल नरम कर सकते। कोई मामला फंसा हुआ है, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इसका दिल नरम कर दे मेरे लिए। आसिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कैसा दिल नरम किया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह दिलों को कंट्रोल करता है। नंबर 4, अल्लाह रिटर्न्स व्हाट यू फियर लूजिंग। अल्लाह जरूर वापस देगा आपको। जो चीज आपको खोने का डर है उससे बेहतर भी दे देगा। अगर वो ना दी, उससे बेहतर दे देगा। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम रिटर्न किए उससे बेहतर हालत में, जिस हालत में गुमे थे, एज अ किंग रिटर्न किए। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के पास रिटर्न हुए। अल्लाह विल गिव यू व्हाट यू हैव लॉस्ट। वन मिस्टेक डज नॉट डिस्ट्रॉय योर डेस्टिनी। बहुत बड़ा लेसन है यूथ के लिए। आजकल हमारे नौजवान बड़ी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बड़े जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। बिजनेस नहीं चला, डिप्रेस, खुदा न खास्ता शादी नहीं चली, आजकल डिवोर्स बहुत हो रही है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। खुदा न खास्ता शादी नहीं चली, बस खत्म।
सच्चा प्यार नहीं मिला, बस खत्म, जिंदगी खत्म, ठीक है, कोई और चीज नहीं मिली, जिंदगी खत्म। मूसा अलैहिस्सलाम यानी बंदा कत्ल हो गया, जंगल में भाग गए, सब कुछ चला गया, फिर स्टार्ट कर दिया। तो वन मिस्टेक कैन नॉट कंट्रोल योर डेस्टिनी। याद रखें, अल्लाह ताला आपको दोबारा चालू कर देगा, अल्लाह ताला दोबारा बहार ले आएगा जिंदगी में, अल्लाह ताला दोबारा आपको जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला सक्सेस दे देगा। नंबर 6, द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू सिन शुड बी रिपेंटेंस। पहला रिस्पॉन्स गुनाह पे तौबा होनी चाहिए, पहला रिस्पॉन्स। इन लोगों की अल्लाह तारीफ करते हैं कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है, सूरह आल इमरान में अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं, कौन लोग? जन्नत के वारिस। अजीब बात है, जन्नत में गुनाहगार जाएंगे, कितनी होप की बात है। अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस हैं कि जब इनसे कोई गुनाह हो जाता है तो ये अल्लाह को याद करते हैं फौरन, जब होश में आते हैं। जाहिर है जब बंदा गुनाह की हालत में होता है, होश खोए हुए होता है ना, जज्बात हावी हो जाते हैं, लेकिन जैसे होश आता है कहते हैं या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, हाय अल्लाह, या अल्लाह मेरा क्या बनेगा। ये है सही रवैया। ऐसे इंसान को अल्लाह माफ़ भी करेगा, वापस भी लाएगा, इंशाल्लाह गुनाह से भी बचाएगा। और मूसा इस्लाम का यही रवैया था, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, या अल्लाह मुझसे क्या हो गया, या अल्लाह मुझसे खता हो गई है, डर रहे थे, या अल्लाह अब निकाल ले, बचा ले, माफ़ कर दे, खसारे वाला ना हो जाओ। नंबर 7, कभी कभी अल्लाह ताला आपको अकेले में ले जाता है, अकेले में ट्रेनिंग करता है, घबराए नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अलोन कर दिया। जो पर्सपेक्टिव मूसा अलैहिस्सलाम को वहां मिला होगा ना, वो कभी भी महल में नहीं मिल सकता। कभी कभी अल्लाह आपको बिजनेस में लॉस करा के वो पर्सपेक्टिव देगा जो आप बिजनेस में सक्सेस से नहीं सीख सकते। कभी कभी अल्लाह ताला आपको अलहदा करके, आइसोलेट करके वो पर्सपेक्टिव देगा जो शायद आपको कामयाबी में नहीं मिल सकता था। ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट द प्रोसेस। मुश्किल है, ट्रस्ट द प्रोसेस। अल्लाह की टाइमिंग को ट्रस्ट करें, लर्न करें, वो चीज सिखा क्या रही है, लर्न करें। व्हाट एम आई लर्निंग? कहते हैं ना, टूटा हुआ दिल सबसे खूबसूरत दिल वो होता है क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव बहुत अमेजिंग होता है। तो अल्लाह ताला कभी कभी लोनलीनेस में इंसान को प्रिपेयर करता है और फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। जब टाइम उसको, जब वो उस काबिल होता है कि उसे चीज़ मिलनी चाहिए, फिर सेफ्टी भी देता है, मैरिज भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है, मिशन भी देता है। और नंबर 8, हेल्प पीपल इवन व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। बहुत खूबसूरत लेसन। देखें, लोगों की मदद करें जब आप मुश्किल में हैं। ये तो सूरह ज़ुहा का सलूशन है। अल्लाह के नबी को अल्लाह एंड में क्या कहते हैं सूरह ज़ुहा में? फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर। ए नबी, इसलिए यतीम की मदद कीजिए, साइल को धुतकारिए ना। यकीन करें, जिस मुश्किल से आप गुजर रहे हैं ना, उस मुश्किल के लोगों के लिए दुआ करने लग जाए। अगर आपको औलाद नहीं है, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह जितने बे औलाद है सबको औलाद दे। आप देखें अल्लाह ताला कबूल करे। अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, वही बीमारी जिससे आप गुजर रहे हैं, उन्हीं बीमारी के लोगों की मदद करें, उनको चैरिटी दें, उनका इलाज करवाएं। अगर आप, अल्लाह ने आपको माल दिया, आप देखें अल्लाह आपको कैसे सेहत देता है। ये साबित हो रहा है मूसा इस्लाम के वाक़े से कि उन्होंने मुश्किल में उन बच्चियों की मदद की और अल्लाह ताला ने उस वसीले को कबूल किया। और देखिए अल्लाह ने कैसे दुआ कबूल की। नंबर 9, द मोस्ट सिंसियर दुआज आर ऑफन द सिंपलेस्ट। सबसे सिंसियर दुआ अमूमी तौर पे वो होती है जो सबसे सिंपल होती है। आप हज़ारों दुआएं कर लें, लेकिन अगर यहाँ से नहीं है ना, अगर उसमें वो तलब नहीं है, वो तड़प नहीं है, तो वो दुआएं हवा में जा रही है, वो बेमायनी है, वो मीनिंगलेस है, क्योंकि यहाँ से ही नहीं है, तड़प ही नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं अल्लाह इन्ना का अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी, लेकिन अंदर से वो तड़प ही नहीं है कि अल्लाह मुझे वाकई माफ़ कर दे, मैं वाकई माफ़ी मांग रहा हूँ, अल्लाह मुझसे खता हुई, तो फिर वो हवा में जा रही है। तो सबसे बेहतरीन दुआ जो यहाँ से निकलती है, सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स हैं। और नंबर 10 और आखिरी, वेल्थ एरोगेंस कैन डिस्ट्रॉय यू। माल दिया है तो उस पर इतराए ना, माल दिया है उसको खर्च करें। और फिरौन कारून वाले जुमले से बचें, ये सब मेरा कमाल है। आजकल हम देखते हैं कुछ व्लॉगर्स को, वेस्ट में जाते हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, डॉलर्स को यूँ लहरा के ना वीडियो बना रहे, कह रहे हैं हाँ भाई पुप्पी, फिर कुड़ी नहीं देती सी ना मैनू, ए वेख डॉलर कमा रहे हैं। अपने चचा को जला रहे हैं, अपनी फुप्पो को जला रहे हैं, रिश्तेदारों को टॉन्ट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? एरोगेंस, नए दौलती। असल तो ये है
कि जिसने जुल्म किया था आपके साथ, जिसने ज्यादती की थी, उसको दे। असल तो सिला रहमी और क्या है? सिला रहमी ये तो नहीं है कि जो अच्छे थे उनसे मिलो। सिला रहमी तो ये है जिन्होंने आपको ट्रॉमा दिया था बचपन में, उनको जाकर मिलो, उनको कुछ दो, गिफ्ट दो जाके। ये सिला रहमी होती है। और सबसे क्विक रिस्क मिलता है सिला रहमी वाले को। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इंसान सिला रहमी करता है उसको अल्लाह बहुत जल्दी दुनिया में रिवॉर्ड देता है, और अल्लाह ताला उसके माल में, रिस्क में, और अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत देता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कारून का जो रवैया था वो था इतराना माल पर, और इसका ऑपोजिट रवैया हाजा मिन फजली रब्बी, ये सब मेरे रब का फजल है। तो खर्चने वाले बने और अल्लाह ताला और सिला रहमी करने वाले बने, अपने रिश्तेदारों पे खर्चा करने वाले बने। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।